Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. Moving forward with our economics previous year questions. We are now doing questions of uh, basics of economy that is related to banking, tax, etc. Okay, we have covered fewer questions before also. We have completed one topic also. Uh, there are different type of things we have discussed in our previous videos. So if you get an insight of it, you can go and visit the playlist for further information. Okay, so moving forward with our question now. What are the most likely advantage of implementing GST? Okay, then it will replace multiple taxes collected by multiple authorities and will thus create a single market in India. That is true. सबको पता है one nation one tax. Okay, then it will drastically reduce the current account deficit of India and will enable it to increase its foreign exchange reserves. That is wrong. अच्छा, जैसे drastically, ठीक है, automatically, then something with ly, adverbs are coming in the questions, then you need to raise an alarm because the thing is, generally, these sentences do not form a part of a general statement, okay? They have something extraordinary in them. So, in order to recognize it, you have to be a little more vigilant कि अच्छा ऐसा कुछ word दिया है तो let's see कि इसका मीन क्या है एक्चुअली ठीक है एंड जनरली वो गलत ही होता है ओके सो सेकंड इज रॉन्ग नाउ वी हैव come down to 50-50 it will enormously increase the again enormously drastically ये extreme statements हैं कि मतलब होगा ही और इतना ज्यादा होगा ठीक है so ultimately they are wrong increase the growth and size of economy and will enable it to overtake China in the near future absolutely wrong it is not right okay the answer is A the slabs, different slabs in GST. What are the items included in GST that we have seen came in 2023? ठीक है ऐसे अलग अलग जो भी आपके चीजें हैं जीएसटी से रिलेटेड वो कंप्लीट करना है ओके नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन tax revenue as a percent of GDP of India has steadily increased in the last decade. Again, again, जो मैं आपको कह रही थी एल वाई वाले क्वेश्चन ठीक है Physical deficit as a percentage of GDP of India has steadily increased in the last decade. अब देखो चलो मैंने बोला कि अलार्म तो हो ही जाना है कि एल वाई वाले क्वेश्चन हैं ठीक है नाउ अगर आपने चार्ट्स देखे होंगे मैप्स जो भी ग्राफ होता है ना वो देखे होंगे देन यू विल रियलाइज कि दिस इज नॉट ट्रू ठीक है टैक्स रेवेन्यू हमेशा से इंक्रीज नहीं हो रहा है डेकेड मतलब 10 इयर्स की बात हो रही है ठीक है तो ऐसा नहीं है नाउ जैसे 2008 में 2009 में एक स्लो डाउन हुआ था ठीक है देयर आर डिफरेंट टाइप्स अगर जैसे पोस्ट कोविड क्वेश्चन आए देन यू हैव टू बी अवेयर कि भाई 2020 और 2021 में स्लो डाउन हुआ था तो स्टीडली तो नहीं होगा इसलिए ग्राफ्स आर इम्पोर्टेंट यू नीड टू टेक अ लुक एट देम न्यूज़पेपर पढ़ोगे उसमें जो इकोनॉमी का सेक्शन आता है उसके ग्राफ्स हमेशा देखा करो ठीक है अब जैसे हमारी अमेरिका से यूएसए से जितना भी नेट एक्सपोर्ट है ठीक है वी आर इन सरप्लस सो वो देख लेना एक बार कि हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को क्योंकि अभी जो ट्रेड टैरिफ वगैरह चल रहा है दैट इज इन न्यूज बहुत ज्यादा तो इसीलिए अब इसका आंसर होगा डी ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है कैपिटल बजट क्या होता है कैपिटल बजट आई होप आपको पता होगा ओके देन एक्सपेंडिचर ऑफ एन एक्विजिशन ऑफ असेट्स लाइक रोड्स बिल्डिंग मशीनरी एटसेट्रा इट इज रॉन्ग इट डज नॉट कम अंडर कैपिटल बजट क्यों कैपिटल पेमेंट्स जो होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे होता है ठीक है कैपिटल बजट नहीं होता दिस इज कैपिटल पेमेंट हम एक्विजिशन कर रहे हैं ठीक है एक्विजिशन करा तो हमने पेमेंट किया होगा ना राइट जैसे लैंड बिल्डिंग मशीनरी इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट लोन्स एडवांसेस तो अगर हमने एक्विजिशन किया है तो वी मस्ट हैव गिवन सम पेमेंट टू इट राइट so it comes under capital payment and not budget ठीक है then loans received from foreign government
So it is true. Loans raised by government, from the public, from Reserve Bank of India, from foreign government and bodies, है ना? तो ये सब इसमें आता है. And loans and advances granted to the states and UTs. This also comes under capital budget. जो capital budget, revenue budget, capital expenditure, revenue expenditure, ये सारे important term है. You need to रीड अबाउट देम. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज थोड़ा नया टर्म है कैपिटल बजट. लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वाइल डूइंग द क्वेश्चन. मैं भी हो गई थी. इट्स नॉट अ न्यू थिंग. ठीक है, बट यही है कि छोटे छोटे वर्ड्स पकड़ना है. इफ यू डोंट नो द आंसर, ऐसे थोड़ा से इंटरकनेक्ट करके पढ़ोगे ना तो आ जाएगा. ओके. Then, with reference to Financial Stability and Development Council, FSTC, okay, consider the following statement. FSTC क्या है? ठीक है. It is an organ of नीति आयोग. No, it is not. It is not an organ. It is apex level body constituted by Government of India. ठीक है. नीति आयोग ने नहीं बनाई है. तो फर्स्ट वाला गलत हो गया. Now, it is headed by the Union Finance Minister. That is true. ठीक है. FSTC, इसके बाद जो आपकी गवर्निंग काउंसिल होती है that decides the repo rate and everything. ठीक है, that you need to know. फिर इसके बाद there are different type of entities related to the RBI that you need to know. ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. FSDC was quite in news that time 2016 में. Okay, so it was asked directly. Then third is also right. Monitor macroprudential supervision of the economy. That is true. So answer will be C, 2 and 3 only. Okay. With reference to 14th Finance Commission, which of the following statement are correct? Okay. It has increased the share of states in the central divisible pool from 32% to 42%. Okay, 32% से 42% कर दिया है. Next, what is this? What is the question? It has made recommendation concerning sector specific grants. So here the first option is correct, second is right. Sorry, first is correct, second is wrong. I'm so sorry. तो 14th फाइनेंस कमीशन के बारे में क्वेश्चन था. अभी जो रिसेंटली फाइनेंस कमीशन है वो कौन सी है? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ. ठीक है, रिसेंट फाइनेंस कमीशन कौन सी है? यू विल राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो जिसने ये वीडियो देखा है, सो दैट आई ऑल्सो नो कि हाउ इट इज रीचिंग टू द पीपल. ओके. सो फर्स्ट जो 14th फाइनेंस कमीशन थी उसने टैक्स का डिवॉल्यूशन इंक्रीज किया था फॉर टू स्टेट्स टू 42% फॉर ईयर 2015 से 2020. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा. फिर इट हैज मेड रिकमेंडेशन कंसर्निंग सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स. तो 13th फाइनेंस कमीशन ने सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स बताई थी, 14th फाइनेंस कमीशन ने नहीं बताई थी. ठीक है, दिस यू नीड टू बी अवेयर ऑफ. सो द आंसर इज ए ओनली. ओके. नाउ 17th question, we'll see. A decrease in tax to GDP ratio of a country indicates which of the following? So, slowing economic growth rate, less equitable distribution of national income. देखो, टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या होता है? टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज कि टैक्स रेवेन्यू ग्रो एट अ स्लोअर रेट देन द जीडीपी ऑफ अ कंट्री. ठीक है, मतलब स्लोअर रेट नहीं, मैं आपको बेसिकली बता रही हूँ कि लोअर टैक्स टू डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या होता है. ठीक है, कि टैक्स रेवेन्यू बहुत स्लो रेट से बढ़ रहा है देन द जीडीपी ऑफ अ कंट्री. ठीक है, तो दैट इज लोअर टैक्स टू जीडीपी रेशियो. नाउ स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है? स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट. तो ऑफ कोर्स इट इज ट्रू, है ना? जीडीपी स्लो रेट से बढ़ रही होगी तो टैक्स भी स्लो रेट से बढ़ेगा. ठीक है. देन लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन का इससे कुछ लेना देना नहीं होता. ठीक है. Tax to GDP ratio compares the amount of taxes collected by the government to the amount of income that country receives. ठीक है, बाकी सेक्टर स्पेसिफिक या फिर डिफरेंट लेवल पे कैसा पेनिट्रेशन है डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है. तो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट एंड सेकंड विल बी रॉन्ग. ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं यू कैन नॉट जस्ट एक्सप्रेस इन वर्ड्स कि व्हाट दैट मीन. एक बेसिक डेफिनेशन ही होती है इनकी एंड यू हैव टू गो ऑन दैट डेफिनेशन. अब जैसे आप देख रहे होगे कि जब हमने ये वाले क्वेश्चन किए थे
पोस्ट 2019 2020, ये क्वेश्चन मोर और लेस बहुत एनालिटिकल साइड पे थे। बट इससे पहले के क्वेश्चन बहुत स्टैटिक आते थे। अगर आपने रटा है अच्छे से, मतलब कंसेप्ट्स आपके क्लियर है, तो वो आपका हो जाएगा। बट नाउ इट इज नॉट द केस। थोड़ा सा ये चेंज जो है ना, शिफ्ट है, वो मैंने आपको एनालिसिस वाले वीडियो में भी बताया था कि कैसे वो शिफ्ट हुआ है। तो यू नीड टू लर्न अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये पुराने क्वेश्चन अगर बन भी रहे तो इतना दिमाग मत लगाना है इसमें, क्योंकि हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ यूपीएससी rather देन टू जज आवर नॉलेज। ओके, उस टाइम पे काफी न्यूज में था, और ये सब आपके स्टैटिक में मिल जाएगा। उससे आप खुद को जज कर सकते हो कि आपको अपना स्टैटिक कितना याद है। ठीक है, बाकी ज्यादा नहीं सोचना है। नाउ 18th क्वेश्चन। There has been a persistent deficit budget year after year. Which of the following action can be taken by the government to reduce the deficit? ओके, तो बेसिकली ये कह रहा है कि बजट डेफिसिट को कम करना है अगर, तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ट्रू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप कम कर दोगे तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर गिव्स यू गुड रिटर्न्स, राइट? तो फर्स्ट इज ट्रू। इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम्स, इट इज फॉल्स। अगर न्यू वेलफेयर स्कीम विल फर्दर इन्फ्लेट द बजट, ठीक है, फर्दर ये इन्फ्लेशन को ट्रिगर करेगा, इसीलिए ये नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड सेकंड ये कट गया, वी आर डाउन टू 50-50। फर्स्ट तो हमें पता है, थर्ड देखते हैं। रैशनलाइजिंग सब्सिडीज। रैशनलाइजिंग सब्सिडीज का मतलब क्या होता है कि रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा गिव अप सब्सिडी करके कैंपेन था, है ना? तो लोगों ने अपनी सब्सिडी गिव अप करी थी, दोज हु कैन अफोर्ड द गैस सिलेंडर विदाउट टेकिंग कंपनसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, तो रैशनलाइज करना है, मतलब सपोज 10 फैमिली अभी है कि 10 फैमिलीज को सब्सिडी मिलनी है, देन अगेन सर्वे किया तो पता चला कि 10 में से जो 3 फैमिलीज हैं, दे नाउ कैन अफोर्ड विदाउट हैविंग सब्सिडी। ठीक है, तो उसको कहते हैं कि रैशनलाइज करना सब्सिडी को। तो थर्ड इज ट्रू, तो ए। नाउ देखिए फोर्थ ऑप्शन भी देख लेंगे एक बार। एक्सपैंडिंग इंडस्ट्रीज। एक्सपैंडिंग इंडस्ट्री से फिस्कल बर्डन बढ़ेगा गवर्नमेंट का। ठीक है, मतलब एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, बट शॉर्ट टर्म में इट विल नॉट बी गुड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पर हमें बजट डेफिसिट कम करना है, तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ एवरी सेक्शन फॉर दैट। तो ए इसका आंसर होगा। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट कि अभी भी आ सकते हैं। ओके, नाउ 19th क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू यूनियन बजट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है? Non-plan expenditure is the money spent on the so-called non-productive area। ठीक है, जो थोड़े से कम प्रोडक्टिव एरिया है वो उस पर पैसे खर्च करना कहलाता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब डिफेंस एक्सपेंडिचर, इट कम्स अंडर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। पीपल विल बी, आई नो थोड़ा सा ये शॉकिंग लगेगा, बट इट इज ट्रू। डिफेंस एक्सपेंडिचर कम अंडर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। एक और डेफिनेशन आप समझ लो कि जैसे ऑब्लिगेटेड है, नॉन प्रोडक्टिव है, बट वी आर ऑब्लिगेटेड टू डू डिफेंस, इज गुड फॉर इंडियन सिक्योरिटी, बट इकोनॉमिकली इट्स नॉट गिविंग एनीथिंग। ठीक है, जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो, सॉरी, सेविंग बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है, बट दिस इज नॉट गिविंग एनीथिंग, सो defense. Then interest payments that are also obligatory in nature, salaries and pension also obligatory in nature, subsidy, they are true, of course obligatory in nature। ठीक है, अब क्या है कि पहले गवर्नमेंट में था ये क्लासिफिकेशन प्लान और नॉन प्लान का, बट अब दिस इज अबॉलिश, दिस इज नॉट देयर। ठीक है, अब ये सीधा कैपिटल और रेवेन्यू में आता है। तो अगर अब क्वेश्चन आएगा तो कैपिटल या रेवेन्यू में आएगा, दिस प्लान एंड नॉन प्लान विल नॉट बी देयर। ठीक है, सो 1 2 3 4 विल बी द आंसर फॉर दिस। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। जो भी डाउट हो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कल से हम अपना दूसरा जो इसका पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यूज का। दैट विल बी रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ओके, तो बैंकिंग और कैपिटल मार्केट का जो सेक्शन रहेगा वो स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, चलो, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।